Good morning to all of you. Once again present in front of you with another set of videos. Another video of NEET 2024 re-examination. It was very easy paper and you would have scored 160 plus in chemistry out of the 50 questions. Okay, so 160 plus out of 180 anyone would have scored. It was very easy paper. In fact, one or two questions were repeated from the 2024 NEET 2024 examination. So let us start this first video. With the first question. So the correct decreasing order of atomic radii of lithium, beryllium, boron, and carbon is. Now we know that when we move from left to right, the atomic radii increases. That means lithium should be at most and carbon should be at least, and boron, beryllium no effect on the atomic radii of extra stability. इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आयनेशन एनर्जी के ऊपर फर्क पड़ता है. तो लिथियम मैक्सिमम, कार्बन मिनिमम. अब देखो ट्रिक, लिथियम कार्बन नहीं है, कार्बन लिथियम उल्टा है, लिथियम बोरोन है, मतलब बी ही मेरा आंसर है. अब अगर कॉन्सेप्ट से जाऊं तब भी यही आएगा, अगर भाई ट्रिक के साथ जा रहा हूं तो भी यही आ रहा है. तो बी शुड बी माई राइट आंसर. चेक कर लेते हैं. Yes, we have got this answer, right answer. Moving to the next question. From the following data, reaction between A and B, order of reaction. We need to find the order of reaction. So order of reaction निकालना बहुत आसान है. Rate is equal to K, A raised to power X, B raised to power Y. अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो B मेरा 1 हो गया. तो मतलब A की वैल्यू क्या आएगी? 2 is equal to 2. 2 raised to power X is equal to 2. That means X is equal to 1 आ गया. तो मतलब अगर मुझे b निकालना है तो इसको इससे डिवाइड करूं तो दैट मींस ये आएगा 2/1 raised to power y is equal to 16/4. दैट मींस 2 raised to power y is equal to 4. दैट मींस 2 raised to power 2. दैट मींस y is equal to 2. So x1 y2, 1 and 2. So the answer should be 1 and 2. So C should be my right answer. Yes, we have got this answer as right answer. देखो NCERT का है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस किया क्लास में. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Statement 1. Propene on treatment with diborane gives an addition product with formula CH3 twice. Okay, no, this is a wrong statement. Why? Because propene will give you CH2 thrice B. Here 2 is not mentioned. Okay, so this is a false statement. Oxidation of this with hydrogen peroxide in the presence of sodium hydroxide gives you propane 2-ol. This is true. Why? Because hydrogen peroxide is there, so it will go anti-Markovnikov. In B2H6 we will get something like this, but due to the presence of hydroxide, OH will be shifted here. So that's why this is true. So we will go 1 is incorrect and the statement number 2 is correct. 1 is incorrect, 2 is correct. Let us check option number B. Yes, we have got this answer, right answer. Moving to the next question. Bayer's reagent is alkaline, cold and dilute KMnO4. कहाँ है? यहाँ है. C is my right answer. मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, ये 11th में ही करवा देता हूँ. बेयर्स रिएजेंट OSO4 के पास था ये, तो रट्टा मारना है आपको, रिएजेंट्स को रट लो, याद कर लो, आपका आंसर आता जाएगा. 4 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following molecules has non-zero dipole moment? Non-zero dipole moment, that means it should have some dipole moment. If you have CCl4, dipole moment 0, CO2 0, BF3 0, मतलब HI is my answer. So non-zero confuse किया गया है. Non-zero का मतलब mu is not equal to 0. Confusion create की गई है बच्चों को. तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ. Yes, it is our right answer. Moving to the next question. The major product formed in the following reaction sequences. Okay, this. ये इस टाइप का क्वेश्चन 2024 नीट में भी हमने किया था. यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे वहां पे मिथाइल था. तो नाइट्रो का मेटा होना चाहिए, मिथाइल का ऑर्थो या पैरा होना चाहिए. तो जो हमारा क्लोरीनेशन होगी वो कुछ ऐसे होगी. मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं. यहाँ Cl लगा देते हैं, यहाँ NO2 लगाते हैं. SnHCl क्या करेगा? इसका बना देगा NH2, एनिलीन कन्वर्ट कर देगा इसका NH2, Na2HCl क्या कर देगा? इसका बना देगा डाइजोनियम सॉल्ट. डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है? Cl, और यहाँ पे क्या बन गया?
N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ki क्या करेगा, डाइजोनियम सॉल्ट की जगह क्या दे देगा हमें, आयोडीन। तो दैट मींस यहाँ पे आ गया इथाइल, यहाँ Cl एंड यहाँ आयोडीन। अब बस ये ऑप्शन हमें चेक करना है, मुझे ऑप्शन ए तो नहीं लग रहा, लेट अस चेक व्हिच वन इज आवर राइट ऑप्शन। ए नहीं है, बी आयोडीन और क्लोरीन उल्टा कर दिए, सी सही है, जो हमने बनाया था प्रोडक्ट वही है सी। यस, सी इज अवर राइट आंसर। तो बच्चों इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, या तो नीट में या जेडब्ल्यू में, भूल गया हूं, बट वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन previously. So which indicator is used in the titration of sodium hydroxide against oxalic acid? Strong बेस एंड वीक एसिड में हमेशा हम यूज करते हैं फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन में जो कलर चेंज है वो आता है कलरलेस टू पिंक। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, मतलब सी ही मेरा ऑप्शन है। बच्चों ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपने नॉर्मली जो लैब में किए हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं, जो चीजें आप लैब में यूज कर चुके हो। देखा, सी इज माई राइट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या ही बोलेंगे, आपको आराम से पता चल जाएगा। नाइट्रोजन, ओके, लिस्ट को मैच करना है। नाइट्रोजन जो होता है इसका हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, छोटा साइज होता है। ओके, नाइट्रोजन एटम है, ओके एटम है तो छोटा साइज है, ए का आएगा 3। ऑक्सीजन हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। C1 चेक कर लेते हैं एक बार, A3C1 कहीं सेम तो नहीं है कहीं पे, A3C1, A3C1 यहाँ पे पड़ा हुआ है डी में, वही हमारा राइट आंसर है। बाकी चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, तो दो ही चीजें जो है वो आपको आंसर दे देती। अगर कहीं पे A3C1 रिपीट हो रहा होता तो हम कुछ और चेक कर लेते। वही होती है ट्रिक, हम वही करते हैं। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ करोजन? रस्टिंग ऑफ आयरन है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये कहां से हो गया भाई? दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जहां इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कुछ बनाया जाता है। कार्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ, हाँ ये सारे के सारे करोजन है। सिर्फ ऑप्शन बी है बच्चों, एनसीईआरटी की लाइन है यार, आपको देखना है। यू हैव टू जस्ट चेक एंड सी। Which of the following pairs of ions will have same spin on the magnetic moment values? ये 2023 में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, नीट में ही आया था। Zn2+ का हो जाएगा 0, टाइटेनियम 2+ में होता है SCTI, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो मतलब 1.75। ओके, विद इन द पेयर, मतलब A नहीं है हमारा। Cr2+ Fe2+ यहाँ पे होता है, क्योंकि Cr2+ में आपके होते हैं 1 2 3 4 और Fe2+ में होते हैं 1 2 3 4 5 और 1 6। ये 2024 नीट वाले में था ये क्वेश्चन, याद आया, सॉल्व किया हमने। तो बी तो है, मतलब ए हमारा ऑप्शन नहीं है और बी भी हमारा ऑप्शन नहीं है। लेट अस चेक मोर। ए हमारा ऑप्शन नहीं है, बी भी जो है वो हमारा ऑप्शन नहीं है। सो दैट मीन्स, अब देखो ट्रिक कैसे लगाओगे, ट्रिक कैसे लगाओगे। यहां पे बी नहीं है, यहां ए है जो कि नहीं है, ए मतलब बी एंड सी ओनली। तो आपको कुछ चेक ही नहीं करना, सी के ऊपर जाना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली जो है वो आंसर मिल जाएगा। लेट अस चेक दिस ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10। Yes, we have got this answer as right answer. तो बच्चों A और B ने ही आपको आंसर दे दिया, need not to go and solve all the other options, यहीं से आपको आंसर मिल जाते हैं। At a given temperature and pressure, the equilibrium constant values for the equilibrium are given this. अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो ये इक्वेशन है इसको रिवर्स किया गया है। That means K2 is equal to 1 upon K1 and whole equation has been divided by 2. That means raised to power 1 by 2. So K2 is equal to K1 under root 1 by। K2 is equal to, ये आंसर आएगा। Yes, that is our right answer. So बच्चों ये अगर मेरे बच्चों को याद होगा, क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हैं हमने फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम के। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आई गेस, 9 है कि 12 है? 12 है, yes. Arrange the following compounds in increasing order of the solubility in chloroform। क्लोरोफॉर्म जो है वो कोवेलेंट होता है और ये होता है आपका आयोनिक, मतलब NaCl लास्ट होना चाहिए
और साइक्लोहेक्सेन पहले होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन NaCl, साइक्लोहेक्सेन नहीं, ये नहीं है, साइक्लोहेक्सेन NaCl, साइक्लोहेक्सेन ये भी नहीं है। अब इन दोनों में जो CH3OH होता है आपका, वो ज्यादा कोवेलेंट होता है, बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो डेफिनेटली A इज माय राइट आंसर। लेट अस चेक दिस आंसर इफ इट इज राइट और नॉट। A should be my right answer. Yes, बच्चों, we have got this answer as right answer. So moving to the next question, question number 13. Identify the incorrect statement about PCl5. PCl5 का पहले तो स्ट्रक्चर दिमाग में आना चाहिए। P, Cl, 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 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। PCl5 plus 2 different PCs. Yes, सही है। All 5 PCl bonds are identical. Identical तो नहीं होते हैं। एक्सियल बॉन्ड जो है वो इक्वेटोरियल से लंबी होती हैं। एक्सियल आर ग्रेटर देन इक्वेटोरियल, मतलब बी ही मेरा आंसर है, ये नहीं है। PCl5 एग्जिस्ट्स, ये भी सही है। PCl कंसिस्ट, ये भी सही है। मतलब ये हमारे आंसर नहीं है, बी हमारा आंसर है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ढूंढना था। और PCl5 के सारे बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड्स लंबी होती हैं, इक्वेटोरियल छोटी होती हैं। सो वी हैव गॉट आवर आंसर राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. Choose the correct statement for the work done in the expansion and heat absorbed or released when 5 liter of an ideal gas at 10 atmospheric pressure isothermally expands into volume. बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ 4th टाइम आया है। ये क्वेश्चन 2 टाइम्स नीट में आ चुका है, 1 टाइम JEE एडवांस में आ चुका है विद डिफरेंट स्टेटमेंट इनटू वैक्यूम एंड आइसोथर्मल। दैट मींस डेल्टा U इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा U 0 है दैट मींस डेल्टा T 0 हो गया। डेल्टा T 0 है दैट मींस डेल्टा Q इज आल्सो 0, नॉट डेल्टा Q इज आल्सो इक्वल टू 0। तो सब कुछ ही इसमें 0 है। तो ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर नहीं है। बोथ हीट एट वर्क डन विल बी ग्रेटर देन 0 नहीं, हीट एब्सॉर्ब विल बी लेस देन 0 नहीं, वर्क डन विल बी 0, हीट विल बी 0। सी ही हमारा आंसर है। तो बच्चों चौथी बार क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 4th टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लेट अस चेक, वी हैव गॉट दिस आंसर एज राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आई गेस। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड: 4 ethyl 1 fluoro 2 nitrobenzene, 4 ethyl 1 fluoro 6 361 143। अगर मैं एडिशन रूल से जाऊं तो ये सबसे छोटा बनता है। मान लो मुझे नाम नहीं पता ही क्या करना है, तो आप एडिशन रूल लगा सकते हो। एडिशन रूल 4 + 1 5, 5 + 2 7, 6 + 4 11, 6 + 4 + 1 11, 6 3 9 + 1 10, 4 + 3 + 8। तो ये सबसे छोटा है, मतलब ए ही मेरा आंसर होना चाहिए। मैं देख लेता हूं, गलत होगा तो फिर नेम देख लेंगे, लेकिन मैं इसी के साथ जाऊंगा, ट्रिक है मेरी। Yes, we have got this answer as right answer. एडिशन रूल से आप इसके आंसर निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आई गेस। Which of the following set of ions act as oxidizing agents? The previous year क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी क्यों होते हैं? नीट 2024 में सेम क्वेश्चन जो है ये था क्वेश्चन नंबर 36, वहां पूछा हुआ था डायामैग्नेटिक नेचर। सेम आंसर थे, इसका आंसर ए है, क्योंकि सीरियम +4 होता है 4f0 और Tb +4 होता है 4f14। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि आपको आंसर्स भी याद रखने हैं। सेम क्वेश्चन उन्होंने तकरीबन मिलता जुलता क्वेश्चन रिपीट कर दिया। आंसर ए मेरा सही होना चाहिए। यस, आंसर ए इज माई राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Select the incorrect reaction in the following. Okay. CH3COCl plus H2O COH, ये तो सही है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, H एंड OH माइनस प्लस खेल लो तो आपका जो है वो प्रोडक्ट सही आएगा। ये ऐसे बनता है। हमें चाहिए इनकरेक्ट रिएक्शन, है ना। ये रिएक्शन ऐसे होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसमें डाल दो H एंड OH, तो HCl निकल जाता, तो ये यहाँ आपके ये बना देगा। CONH2 अमाइड है, लिथियम हाइड्रोइड ने दे दिया COH, नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं देगा। ये हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ देगा, इसकी भी रिडक्शन हो जाएगी। C एंड NH2, CH2 NH2, मतलब B ही मेरा आंसर है। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन से बनता है, रिडक्शन से नहीं बनता, ये ट्रिक है।
This is a reducing agent. So you will get B, I guess. बाकी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको देखना है तो देख लेना, मैं तो नहीं देखूंगा. So B is my right answer because यहाँ पे reducing agent is given and in the reaction oxidation is happening. So that is the reason why I did not check all other answers. Moving to the next question. The UV visible absorption bands in the spectra of lanthanoid ions are X. Okay. Lanthanoid जो होते हैं ना वो narrow band spectra देते हैं. Physics में है ये. Because of the excitation of involving Y electrons. X तो है आपका narrow. अब Y जो है वो ढूंढना है. ब्रॉड नैरो. अब Y में जो आपके इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइट होते हैं दैट इज ड्यू टू Fl इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो आई विल गो विद बी और इलेक्ट्रॉन इसमें एक्साइट नहीं होते. मैंने आपको पढ़ाया ना, मैंने ये नोट्स में मेंशन है, क्लास आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है. जो डी ब्लॉक है वो कलर देते हैं, स्पेक्ट्रा देते हैं डी ट्रांजिशन से, और एफ ब्लॉक देते हैं एफ ट्रांजिशन से. सो डेफिनेटली नैरो एंड एफ ब्लॉक इज माय आंसर. लेट अस चेक दिस आंसर. बी शुड बी माय आंसर. Yes, it is my right answer. Moving to the next question, question number 19. Ethylene diamine tetraestic acid is an hexadentate ligand. MB, okay, hexa ही होता है ये. MB तो नहीं होता, मोनो भी नहीं होता, बाई भी नहीं होता. बच्चों अब इस क्वेश्चन को बताओ, आप क्या बोलोगे? क्या ये नीट लेवल का क्वेश्चन है? इट इज जस्ट एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी, हाँ ये क्वेश्चन जो है ये भी रिपीट हुआ है. कहां से रिपीट हुआ है? JEE 2025 सीरीज में. आप लोग मेरे वीडियोस चेक करना, मैंने वहां पे इथाइलिन डायमंड टेट्राएस्टेट आयन की स्ट्रक्चर भी बनाई थी. वहां भी सेम पूछा गया था कि इसकी डेंसिटी क्या है, ऐसा था ये. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 I guess. The amount of glucose required to prepare 250 ml of M/20 aqueous solution is, okay, molarity is equal to N upon V into 1000, or 1/20 is equal to 0.05 is equal to given mass upon 180 into 1000 upon 250, or I can say 0.05 into 180 divided by 4 is equal to given mass. So 2 zeros 90, 9/4. So given mass is equal to 9/4. 9/4 means 4 2s are 8, 2 point something. Option A. Simple molarity equation we need to use and we would have found the answer. Let us check this answer. 2.25. We have got this answer right बच्चों. मोलारिटी का क्वेश्चन यार नीट में इतना आसान क्वेश्चन दे रहे हैं नीट में. So question number 21 I guess we are solving. Identify the incorrect state from the following. The acidic strength of HX follows the order HF, HCl, HB. Okay, ये उल्टा है, ये उल्टा होना चाहिए, मतलब यही मेरा आंसर है. HI ज्यादा एसिडिक होता है, देन HBr, देन HCl, देन HF. मैं चेक ही नहीं करूंगा, बाकी मैं इसी को चेक करूंगा, एक के साथ जाऊंगा. गलत होगा तो भी आपके सामने, सही होगा तो भी आपके सामने. दिस इज माई राइट आंसर. यस, दैट इज माई राइट आंसर. आपको बच्चों कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी पढ़ने की जरूरत ना पड़े. एक ही ऑप्शन देखो, वहां से आपको आंसर मिल जाए, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए. फॉर द रिएक्शन, ओके, डेल्टा H क्यू माइनस क्यू, मतलब रिएक्शन इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय यूज ऑफ कैटालिस्ट. कैटालिस्ट से तो कुछ नहीं होगा. डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ N2, तब तो वो बैकवर्ड हो जाएगा. लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई कंसंट्रेशन. हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए बिकॉज डेल्टा U नेगेटिव है, डेल्टा H सॉरी नेगेटिव है. तो हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर. यस, दिस इज माय राइट आंसर. व्हाई? जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इन दोनों की कोलिजन बढ़ेगी. दैट मींस मोर अमोनिया इज गेटिंग फॉर्म्ड. प्रेशर बढ़ाने का मतलब हो गया कि ये दोनों पास पास आएंगे तभी तो प्रोडक्ट बनाएंगे, और ये नेगेटिव है तो टेम्परेचर शुड बी लो. सो हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2. यस, ये बढ़ा दो, प्रोडक्ट आपका अपने आप आगे रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा. सो डेफिनेटली डी इज माई राइट आंसर. लेट अस चेक दिस ऑप्शन. Yes, we have got this answer right. Moving to the next question. Okay, 23 I guess if I am not wrong. Okay, reaction sequence है, पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं. यहाँ बनेगा CH3OH CH3CN. अब ये बच्चों रिडक्शन है, रिडक्शन हो रही है, तो CH3 CH2
NH2। दूसरी आपको पहचान क्या मिलेगी कि ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट हमेशा अमाइन की ही अमाइन से फॉर्म होता है, तो मतलब डेफिनेटली सी आपका अमाइन था। तो यहां पे बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, H2 ऐड किया तो D जो है आपका वो बन जाएगा CCOH। दो ही कार्बन की चेन है क्योंकि एक साइनाइड यहाँ से आया, तो ये बनेगा इथेनॉल। चेक कर लेते हैं कि पूछा हुआ क्या है। सो द मेजर प्रोडक्ट डी आपका इथेनॉल है, वो करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, यस वी हैव गॉट दिस आंसर एज राइट आंसर। तो आपको इसमें हिंट था NaNO2 प्लस HCl कि आपका ये जो है ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है। तो डाइजोनियम सॉल्ट कितने कार्बन का बन रहा है वो आपको साइनाइड से पता चलने वाला था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ब्लॉक दिया हुआ है यार, इससे आसान क्वेश्चन बताओ, क्या ये एक्चुअली इज दिस द नीट लेवल क्वेश्चन? ओके, सो मैग्नीज इज D block, cesium is S block, arsenic is P block. We have done. That means lanthanide is A1B4 C2 A1B4C2 यहां पड़ा हुआ है। यस वी हैव गॉट दिस आंसर राइट। अब ये तो बच्चों मतलब जिसने नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ी है वो भी सॉल्व कर सकता था यार, वेरी इजी क्वेश्चन। सो वी हैव सॉल्व्ड 28 क्वेश्चंस सो फॉर, आई गेस 24 क्वेश्चन आई गेस वी हैव सॉल्व्ड। 25th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बिडेंटेड? एम्बिडेंटेड वो होता है जो दोनों साइड से बॉन्ड बनाता है। C2O4 नेगेटिव होता है, ये एम्बिडेंटेड नहीं होता। SCN-NCS होता है, NO2ONO होता है, CN-NC होता है, मतलब A should be my right answer। जस्ट 15 seconds का क्वेश्चन है, just merely a question of 15 seconds। Moving to the next question, the quantum numbers of 4 electrons are given below। सबसे पहले तो इसको लिख ही लो, 4D 3D 4P 3P। Now the correct decreasing order of energy, decreasing order का मतलब high to low, that means 4D 4P 3D and 3P। That means 1 3 2 4 1 3 2 4। Where is 1 3 2 4? This is the answer. So option number B should be my right answer। Yes, we have got this answer right। Moving to the next question, question number 27 I guess, 27। yes, so रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट C ढूंढना है। ये आपको क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा ये डबल बॉन्ड, HBr के एडिशन करेंगे तो CCCBr और एक्वस KOH मतलब CCCOH। ये क्या बन गया, ये बन गया प्रोपेन-2-ऑल। बच्चों का क्वेश्चन है, बच्चों का एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH का फर्क पता होना चाहिए बस। HBr एडिशन मार्कोनी का हो रही है कि एंटी मार्कोनी का हो रही है वो पता होना चाहिए था बस, और आपका आंसर आ जाता। तो आंसर नंबर बी शुड बी माय राइट आंसर। लेट अस चेक। यस, बी इज माय राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। The compound that does not undergo Friedel-Crafts alkylation but gives a positive carbyl amine reaction। carbyl amine टेस्ट जो है वो प्राइमरी अमाइंस और एनिलीन देते हैं, तो और एनिलीन ही है जो Friedel-Crafts रिएक्शन नहीं देती है। मेमोरी बेस्ड या फिर रट्टा बेस्ड आप बोल सकते हो, बाकी चेक ही नहीं करेंगे। आंसर ए इज माय करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड सो फार। क्वेश्चन नंबर 29। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक का मतलब हो गया कि डेल्टा यू शुड बी पॉजिटिव, दैट मींस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव। अब पूछा क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। बी एंड डी आर माय करेक्ट आंसर। आंसर ए। बच्चों मैंने बोला ना आप ऑप्शन मत देखो, यू नीड टू फर्स्ट चेक द, यू नीड टू फर्स्ट सॉल्व द क्वेश्चन। इफ यू सॉल्व द क्वेश्चन डायरेक्टली देन डेफिनेटली यू विल गेट द राइट आंसर्स। यस, वी हैव गॉट दिस आंसर एज right answer। Moving to the next question, question number 29 I guess, 29 30। 1 gram of H2 has same number of molecules। अब molecules निकालने का तरीका होता है N into A, मतलब molecules जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आ जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं।
1/2 कितना बनेगा 1/2 मोल 14/28 1/2 मोल यही होना चाहिए आंसर मेरा, यही होना चाहिए। 18/1 मोल 16 तो 16/28 1.5 बनेगा 28 ये 1 मोल, मतलब आंसर एक ही है मेरा। सो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी थी, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले और आपको मिला एकदम सही आंसर। यस वी हैव गॉट दिस आंसर एज right answer. Moving to the next question, question number 29 I guess, 31 I guess. Which of the following represent the variation of ln k versus 1/t according to the Arrhenius equation? Same question repeated question है नीट 2024 का। मैं आपको ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, सेम क्वेश्चन है। अब हमने किया था ln k = a e अपॉन RT, तो इसको सॉरी इसको जब हमने कन्वर्ट किया था इस इक्वेशन को तो ये बना था ln a माइनस e अपॉन RT। तो k और -1/t का ग्राफ कुछ ऐसा टिक किया था। बोल रहा हूं रिपीटेड क्वेश्चन नीट 2024 क्वेश्चन नंबर 17। आप मेरी पुरानी वीडियो में चेक कर सकते हैं या फिर आप पुराने क्वेश्चन पेपर में चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट किया है इन्होंने, तो सी शुड बी माय आंसर। ये तो मेमोरी बेस्ड ही हो जाएगा, एकदम सही आंसर है मेरा। यस वी हैव गॉट दिस आंसर, राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 32। A steam volatile organic compound which is miscible with water has a boiling point of 250. Okay. During steam distillation, mixture of this organic compound and water will boil at. अब जो हमारा वेपर प्रेशर होता है बच्चों, दोनों का मिक्सचर होता है। वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 100। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं वहां पे क्या होता है कि कुछ एक सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट पार्टिकल्स पकड़ लेते हैं, तो जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है उससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, अब इसका 250 डिग्री है। दैट मींस जो मिक्सचर है आपका वो 100 से लोअर देन 100 पे ही बॉयल करेगा। हमने पढ़ा था ना रॉल्ट लॉ, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन गया है। तो ये लोअर टेम्परेचर पे करेगा above 100, not my answer, above 250, at 250, close to but below 100. This is my right answer. So I will go with option number D. राउट लॉ का आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला पोर्शन, वहां से इन्होंने ये क्वेश्चन को पिक किया है। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो आपको आंसर मिलेगा सही। So 32 questions we have solved so far. Next question 33. Glycogen is similar to amylose in its structure. It is a false statement. फॉल्स है भाई, फॉल्स है। यस डेफिनेटली ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? ग्लाइकोजन में होती है 1,4 लिंकेज, अमाइलोज में होती है 1,4 एंड 1,6 लिंकेज, तो स्ट्रक्चर सेम तो नहीं है। ग्लाइकोजन इज फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई, इट इज ट्रू। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू, गोइंग विद ऑप्शन नंबर बी। मेमोरी बेस्ड है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। बायोलॉजी वालों के लिए तो वैसे भी मुश्किल नहीं है, ये सब आप कर सकते हो। Yes, we have got this answer as right answer. Moving to the next question, question number 34. Oxygen states not shown by manganese in the given reaction. यहाँ पे आ जाएगी 2 2s are 4, 4 2s are 8 minus 1, 7, 4 2s are 8 minus 2, 6. Not shown means not my answer, not my answer, not my answer. B and E are my answer. So if the option is mentioned like B and E, we will check the answer. If it is mentioned there B and E होना तो चाहिए, हाँ D option है। Yes, we have got this answer right. कितना टाइम लगता भाई इसको? 20 सेकंड 30 सेकंड लग जाते, उससे ज्यादा नहीं लगता। नेक्स्ट है given below are two statement, the Baalmer spectral line of hydrogen atom with the lowest energy is located at 5/36 RH centimeter। सॉल्व कर लेते हैं। अब बाल्मेर में N1 होता है 2, N2 होता है 3, क्योंकि लोएस्ट एनर्जी है। E इज इक्वल टू एच न्यू और HC बाई लैम्बडा। एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्बडा कम होगा। लैम्बडा कम होने का मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन का है वो नजदीक से आ रहा है, नियर बाई इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है। सो न्यू बार इज इक्वल टू RH इंटू 1/2 2 4 माइनस 1/3 3 9। यस 5/36 आ जाए। यस मतलब ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है।
When the temperature of black body increases, the maxima of the curve shifts to shorter wavelength. इसमें जो स्टेटमेंट 2 है वो भी ट्रू है. हमने ग्राफ बनाया था ऐसा ऐसा, ये वाला ब्लैक बॉडी रेडिएशन का. तो अगर आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ी है तब भी आपका ये जो आंसर है वो सही हो जाता. तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. गोइंग विद ऑप्शन नंबर सी व्हिच इज आल्सो अ करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 I guess. So CH3CH2OH Mg. तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे मेरे पास जो A बनेगा वो बनेगा CH3CH2I, B बनेगा CH3CH2 MgI, ये आ गया HCHO. अब इसको इधर ऐसे लिख लो, C डबल बॉन्ड O H एंड H, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसमें यहाँ प्लस यहाँ माइनस. दैट मीन्स ये बनेगा HCO MgI HCH2CH3. जब इसका मैंने हाइड्रोलिसिस किया तो ये बनाएगा CHCH2CH3OH मीन्स 1 2 3 प्रोपेनोल. प्रोपेनोल, 1 प्रोपेनोल या फिर प्रोपेनोल. लेट अस चेक इफ इट इज हियर. N propyl, isopropyl, propanol, okay, N propyl alcohol. Yes, we have got this answer as right answer. So moving to the next question, question number 37. Let us check this question. Identify the correct statement. Incorrect statement. PET thrice, ASPH thrice as ligand can form D-pi, N and single bond is strong. Okay, this question is again repeated. It was repeated in JEE 2025. चेक करना मेरे वीडियोस, भी है इसका आंसर. वहां पे मैंने बताया था. Yes, definitely. मैं पढ़ूंगा ही नहीं इसको. तो we will not solve, क्योंकि PYQ सॉल्व करने का मतलब होता है कि you should have known कि ये क्या है. So this is my correct answer because it is repeated in JEE 2025. Next question. Match list 1 with list B. Okay. So lake test is given by aluminium. A is 3. Let us check if it is there. A3. Okay, only we have got one option. इसको बच्चों आप ऐसे याद रखना कि लेक में एल्यूमिनियम गिरा. Yes, we have got this right answer. तो लेक टेस्ट जो होता है वो एल्यूमिनियम ही देता है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी. तो सीधा सीधा है, याद रखना है आपको. ग्रुप वाइज जो टेस्ट होता है वहां पे आपको याद रखने होते हैं. नेक्स्ट है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. ओके, देख लेते हैं ऑप्शंस को भी ले लेते हैं फ्रेम में. आएंगे तो यस 3 तो आ गए. अब ये है क्या, बॉन्ड एंथैल्पी है मॉलिक्यूल्स की. अब सबको पता है कि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इसकी होगी. उसके बाद ए का, बी का 3, B3 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां तो है. चेक कर लेते हैं, कई बार एक से ही आंसर आ जाता है. ओके, 2 में है. B3 is in 2. B3 is in 2. So that means A, B, C, B. ऊपर की वैल्यू क्या थी एक बार चेक करते हैं. 435, 49. ओके, नाउ ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो ये है D2, B4, D2, B3, D2. Yes, B is 3, D is 2, B3, D2. Let us check. अगर ये ऐसा है तो होना चाहिए B3, D2, B3, D2, B3, D2. B3, D2 वाला एक ही आंसर है जो कि हमारा राइट आंसर है. सो ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट बच्चों दोनों मिक्स करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल इज दिस मच. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी. सब कुछ तो गिवन है भाई, इसमें कुछ नहीं करना. -NFE0, तो ये बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन है, -2 इंटू 96487 इंटू 0.32. तो कैलकुलेटर आपको करना है, मैं तो कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं. कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आई है दैट इज -61751 जूल्स.
मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ए ही मेरा राइट आंसर है। क्यों? 61,000 वाले दो ऑप्शन थे, लेकिन नेगेटिव इज माय राइट आंसर, सो वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट ऑप्शन ए शुड बी माय राइट आंसर। Yes, option A is my right answer. Moving to the next question. Okay, we have solved how many questions? 40 questions we have solved. Only 10 questions are left. Match list 1 with list 2. Okay. Gas with rotten smell, pungent smell, brown fumes, colorless gas. Colorless gas is CO2. Means A3. A3. Brown fumes. Brown fumes is, pungent smell is this one. A3C4. Let us check. अब मेमोरी बेस्ड है कि आपको कौन सा कभी याद आ रहा है, डिपेंड अपॉन टू, डिपेंडिंग अपॉन दैट। सो A2C4, A2C4 चेक कर लेते हैं। A2C4, A2C4 ऑप्शन ए में ही है यार। A4C2 नहीं, ऑप्शन ए। आई विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। सो ए शुड बी माई राइट आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार। यस, इट इज माई राइट आंसर। अब बच्चों डिपेंड करेगा ना किसको कौन सी चीज पहले याद आ रही है, उस हिसाब से, क्योंकि CO3 हमेशा, CO3 नेगेटिव हमेशा देता है CO2। CO2 का कोई कलर नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड का। द रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl इन 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl इन वाटर। ओके, कॉमन आयन लगेगा। पहले तो हमारे पास जो AgCl है वो टूट के क्या बनाएगा, वो बनाएगा Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। That means S is equal to 10 raised per minus 10 under root, that is 10 raised per minus 5। अब निकालनी है हमें रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर KCl में, तो मतलब AgCl is equal to Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, that means ये बनेगा S, ये बनेगा 0.1 प्लस S, ये हो गया 0, मल्टीप्लाई है। So that means 10 raised to power minus 10 is equal to this one. That means S is equal to 10 raised to power minus 9 S dash। अब मुझे निकालनी है इनकी रेशो, ओके, टू द सॉल्युबिलिटी। That means 10 raised to power minus 9 upon 10 raised to power minus 5 is equal to 10 raised to power minus 4 should be my answer। ओके, ए ही पड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए is my right answer। Let us check this answer। Yes, that is right answer. So we have got this our answer right। थोड़ा सा कॉमन आइन लगाना था, ये मैं बच्चों को मार्क करवा के रखा हूं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आइन ये नीट में आता है, हर साल का क्वेश्चन है। एवरी ईयर दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। On complete combustion 0.3 gram of an organic compound gave 0.2 gram of CO2 and 0.1 gram of H2O। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। पहले तो कार्बन की निकाल लेते हैं। कार्बन का क्या होता है कि C आपको CO2 देता है, तो 12 ग्राम ने दिया 44 ग्राम। इसका मतलब हो गया कि 0.2 हमें मिला x ग्राम से, तो x इज इक्वल टू 0.2 इंटू 12 अपॉन 44। तो कैलकुलेटर का मैं इसमें कर रहा हूं यूज। सो 0.0545। now percentage of carbon 0.0545 divided by 0.3, तो इट इज इक्वल टू, एक मिनट मुझे ये थोड़ा सा लेट मी चेक अगेन, कुछ गड़बड़ लगा है मुझे। 0.2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 44, यस सही है, सही है। सो इट इज इक्वल टू 0.0545 divided by 0.3 is 0.18166। that means approximately 18%। यहाँ कार्बन 4 है, 18 है, 15 है, मतलब B is my right answer। आपको हाइड्रोजन जो है वो चेक ही नहीं करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है आपको चेक करने की। सो मोल कंसेप्ट स्टोइकियोमेट्री आपको लगाना है, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। यस, वी हैव गॉट दिस आंसर right। Moving to the next question, question number 44। From the following reaction method X2Fe dark, which is not suitable for preparation of corresponding halogen products? Fluorine, yeah, definitely fluorine is very much reactive,
मींस उसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है, तो ये प्रोडक्ट नहीं देता। फ्लोरिनेशन याद करो, फ्लोरिनेशन के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होती हैं। एक हम सॉल्ट्स का यूज करते हैं, एक स्वार्ट्ज मेथड का यूज करते हैं। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कैन नॉट बी डन बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ F2 is very high. That is the reason. So right answer. Moving to the next question. Question number 45, if I am not wrong. The alkane that can be oxidized to the following corresponding alcohol by KMnO4. अब इसके लिए बच्चों कंडीशन ये होती है कि इस O का बनेगा OH. That means R1, R2, R3. यहां पे भी आपका एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, यहां पे भी एल्काइल होना चाहिए, और यहां पे भी एल्काइल होना चाहिए। नहीं तो ना ये कुछ और बना देगा आपको, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो चेक कर लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। सो R1 is H, R2 H, R3 H, ऑप्शन बी है मेरे हिसाब से। देखो यहां पे हाइड्रोजन तो सबकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यहां किसी की नहीं हो पाएगी, यहां इन दोनों की हो जाएगी, यहां इसकी हो जाएगी। हमें चाहिए टर्शियरी अल्कोहल, तो मतलब बी ही मेरा राइट आंसर है। तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना था और आपका जो आंसर है वो मेरे हिसाब से सही हो जाता। यस, वी हैव गॉट दिस आंसर एज राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। For the following reaction at this enthalpy changes this much, then the internal energy change. अब बताओ थर्मोडायनामिक्स का ये बेसिक सा फॉर्मूला किसको याद नहीं है? डेल्टा NG/RT। सो इट इज 15 किलो जूल। जूल 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 जूल, ये किलो जूल में है, जूल्स में ही कर लेते हैं, फिर किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। 15,000 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG, 3 + 1 4 2 -2 इंटू 8.314 इंटू व्हाट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर इज 300 केल्विन। तो 15,000 प्लस 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 कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटू 8.314 इंटू 300 प्लस 49884 इज इक्वल टू प्लस 15,000 19988.4। सो इसको अगर मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा 19.98 किलो जूल, और यहां गिवन है 1.9, मतलब ए मेरा आंसर है। ओके, सो ये चीजें आपको देखनी है, अप्लाई करनी है। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी माय राइट आंसर। लेट अस चेक। यस, वी हैव गॉट दिस आंसर एज राइट आंसर। तो ये सही है बच्चों। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 500 केल्विन 700 केल्विन इज दिस दिस दिस। एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों याद करो, नीट 2024 में यहां पे क्वाड्रपल वाला क्वेश्चन आया था एक, वहां भी एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी थी हमने। सेम क्वेश्चन, पता नहीं 2024 में या 23 वाले नीट में है, कहीं पे था, क्वाड्रपल्स हो जाता है। तो इसको करते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो इसके लिए जो मेरा फॉर्मूला लगने वाला है दैट इज log of K2 upon K1 is equal to EA upon 8.314 into 1 upon T1 minus 1 upon T2। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो K2 K1 है मेरे पास 0.14 and 0.04। ओके, तो log of 0.14 upon 0.04 is equal to EA upon 8.314 into 1 upon minus 1 upon something। समथिंग में क्या आएगा? समथिंग में आएगा 700 500। ओके, तो ये बन जाएगा मेरा 500 700। दैट मीन्स log of 0.14 upon 0.04 is equal to EA upon 8.314 200 upon 35 3,50,000। सो अब इसके लिए तो मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो ये सब कैलकुलेटर यूज करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो मैच कर रही है सी के साथ। C should be my right answer. Let us check this option.
C should be my right answer. Yes, ये आसपास वैल्यू आई थी 18,219 के आसपास की वैल्यू थी, तो ऑल है ना. So next question, question number 48. Mass of glucose required to dissolve to prepare 1 liter of its solution which is isotonic with 15 gram of urea. Isotonic का मास निकालना है. Now pi1 is equal to pi2. That means C1 RT is equal to C2 RT. That means N upon V RT is equal to N upon V RT. अब क्योंकि दोनों 1 लीटर हैं, RT RT कैंसल, V कैंसल. That means given mass upon molecular mass is equal to given mass upon molecular mass. अब इसमें फिर लेते हैं यूरिया का. 15 by 60 is equal to X by इसका है ग्लूकोज 180. अब बच्चों ये चीजें आपको याद होनी चाहिए. अगर आप ग्लूकोज का मास भी कैलकुलेट करने बैठोगे तो भाई फिर कैसे होगा आपका. सो X is equal to 180 into 15 divided by 60, 45 है ऑप्शन में. 55, 15, 30, 45. We have got this answer. Right होना चाहिए. Let us check. Yes, it is a right answer. So moving to the next question, question number 49. MnCO 10 and CO twice CO8 structures है. क्या क्या है इसमें? मेटल मेटल लिंकेज, टर्मिनल, CO. अब इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या बोलते हैं उसको. ओके, मेटल्स इन जीरो ऑक्सीजन स्टेट तो है, मतलब डी तो मेरा आंसर है. डी आंसर होने का मतलब हो गया कि ए मेरा आंसर नहीं है. इसका मतलब बी भी मेरा आंसर नहीं है. चेक कर लेते हैं यार इसको. इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. तो मैंगनीज का कितना हो गया? Mn25 50, 60, 50, 60. दैट मीन्स यस, यहाँ पे तो मैंगनीज मैंगनीज मेटल मेटल बॉन्ड होगा. CO 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 1 2 3 4 5 सेम इधर बनेंगे. मीन्स ए भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है. ब्रिज्ड CO नहीं होंगे, टर्मिनल है इसमें सारे के सारे. आप इस स्ट्रक्चर को चेक कर लो. तो ए बी एंड डी शुड बी माई आंसर. थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना है भाई. ए बी डी, डी है. यस, वी हैव गॉट दिस आंसर एज राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों थोड़ा सा आपको लगाना था दिमाग. मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम स्टेबलाइजेस द कार्बन आयन ड्यू टू -I इलेक्ट्रो हाइपर कॉन्जुगेशन. अगर रेजोनेंस हो, सही आंसर. अगर रेजोनेंस हो तो हम खेलते हैं वहां पे प्लस आर एंड माइनस आर, प्लस एम माइनस एम. और अगर रेजोनेंस ना हो तो सॉरी आपका कॉन्जुगेशन ना हो तो वहां पे बड़ा फैक्टर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन. सो दैट्स ऑल फॉर द नीट 2024 री एग्जामिनेशन. 2025 जब आएगा उसको तब सॉल्व करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस. बच्चों जो अपना अगला सेट ऑफ सीरीज आएगा, वीडियोस आएगा, वो आएगा JEE 2024 शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2. सारे के सारे सॉल्व करेंगे. आप इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड सबके साथ शेयर कीजिए. Thank you very much. See you in the next video. Thank you everyone.